So let's start with the today's session, laws of motion or Newton's laws of motion in that case. This is 19th problem. Can you read the question? आपको problem दिखाई दे रहा है? It says the force of buoyancy exerted by atmosphere on a balloon is B in upward direction and remains constant. Balloon की बात हो रही है. The force of air resistance on the balloon acts opposite to the direction of velocity and is proportional to it. The balloon carries the mass m and is found to fall down near the earth's surface with a constant velocity. How much mass should be removed from the balloon so that it may rise with a constant velocity v? It's a very good question. हमें यहाँ पर क्या क्या बताया गया है? Let me just jot down what is given to us. ठीक है? We are given that there is a force of buoyancy. यहाँ पे दो रेजिस्टेंस, एक है air resistance. Let me call this as FA. FA is the air resistance, and they say this resistance, air resistance, is proportional to the velocity. It acts in the opposite direction. ये जो air resistance है, force of air resistance, it acts opposite to the direction of velocity and proportional to it. So let me say that FA is equal to some constant into velocity. It is directly proportional to velocity. ठीक है? Where v is the velocity. And और क्या यहाँ पे दिया हुआ है? F m. The balloon carries the mass m and is found to fall under the earth's near the earth's surface with this much of velocity. Then there is a buoyancy force also. Let me say B is the force of buoyancy. ठीक है? अगर हम balloon की free body diagram draw करें, what forces are going to be there acting on the balloon? So let me say the balloon is कुछ इस तरह का balloon है, समझो के, and this balloon is carrying certain mass. They are connected like this. Let's see. ये balloon है and this is carrying certain mass. We see. ठीक है, ऐसा कुछ है. ये balloon है. This is carrying some mass m. अब presently वो कहाँ पर जा रहा है? They say that this is falling down with certain velocity, constant velocity, है ना? This is uniform motion. Uniform motion तब होता है जब उसका velocity constant होता है. So initially it is given that it is found uh, fall down the near earth surface. ये नीचे गिर रहा है. Now I want to know, ये अगर मास m इसके ऊपर लगा दिया गया तो this is falling down. समझ में आ गई बात? I want to draw the free body diagram and I want to show all the forces active and reactive acting on this. तो सबसे पहले होगा उसका self weight. Self weight is acting vertically downwards, so I'll just show it over here like this. This is mg. Velocity अगर downward है तो air resistance जो होगा वो ऊपर की दिशा में उसके ऊपर act करेगा. So this is the air resistance. Let me say Fa is the air resistance which is equal to K into V. And buoyancy force जो होगा, force of buoyancy, वो भी ऊपर की दिशा में होगा. Atmosphere is going to, बराबर, and buoyancy force is going to be upthrust which is given by the medium. So this is the force of buoyancy. So these are all the forces acting. ये दो upward forces है और एक नीचे वाला downward force है. So now तो दोनों में कौन जीत रहा है, या कुछ जीत रहा है क्या नहीं जीत रहा है? जीत रहा है. एक्चुअली अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन का क्या अर्थ होता है रे? एक्सेलरेशन इज जीरो. अगर एक्सेलरेशन इज जीरो तो F इज इक्वल टू ma के हिसाब से नेट फोर्स एक्टिंग इज ऑल्सो जीरो ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग. क्यों? क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट है. वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो है, और F इज इक्वल टू ma के हिसाब से देयर इज नो नेट फोर्स. इसका मतलब है, देखिए, जो भी कांस्टेंट वेलोसिटी है, दैट इज व्हाट द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन.
every body continues to remain in the same state or state of uniform motion unless and until it is acted upon by an external imbalance force. तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है, तो जब तक नीचे का फोर्स ज्यादा नहीं होता तब तक उसका वेलोसिटी बढ़ेगा नहीं, ऊपर का फोर्स ज्यादा नहीं होता तब तक उसका वेलोसिटी कम नहीं होगा, तो उतने ही वेलोसिटी से वो गिरता रहेगा. मतलब एक्चुअली अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? सो दिस इज द केस वेयर द बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम. So upward force, that is B plus kV, is equal to downward force mg. I hope this is clear to you. This is case 1 or condition 1. समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया सबको? अब this is the first case. अब उन्होंने क्या बोला कि भाई दूसरा केस उनको चाहिए. They want कि इसमें से कितना मास हटाया जाए, इसमें से कितना मास हटाया जाए ताकि क्या होगा, it will, they say how much mass should be removed from the balloon so that it may rise with a constant velocity v. अब देखिए इसमें से कुछ मास हटाना चाहिए, तो मास कितना हटाने का बाबा, लेट मी से, अब उसका मास कुछ हटा दिया और मास हटाने के बाद ये मास कितना हो गया, लेट मी से स्मॉल m इज द न्यू मास वेयर इन दैट. तो व्हाट इज द मास रिमूव्ड, इट इज कैपिटल M माइनस स्मॉल m. दैट इज आस्क्ड हियर. इज दैट अंडरस्टूड? समझे? अब इसके वजह से ये मास नीचे क्या करेगा, वेट बलून. अब बलून जो है वो ऊपर की दिशा में जाना चाहिए. दिस इज गोइंग अप विथ यूनिफॉर्म मोशन. इज दिस ओके? इस अपवर्ड यूनिफॉर्म मोशन मतलब इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. समझ में आया? तो एयर रेजिस्टेंस जो भी वेलोसिटी है उसके अपोजिट में काम करेगा. तो अब के बार मुझे एयर रेजिस्टेंस यहां से कैसा दिखाना पड़ेगा, एयर रेजिस्टेंस हैज टू बी डाउनवर्ड. इज दैट क्लियर? समझ में आया? बाकी बॉयंसी तो ऊपर ही रहेगा, तो फोर्स ऑफ बॉयंसी विल बी अपवर्ड ओनली, लेकिन एयर रेजिस्टेंस विल बी डाउनवर्ड. इज दिस क्लियर टू यू? सो अब भी यहाँ पे भी द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. करेक्ट? दैट मींस बी इज इक्वल टू एफ ए. एफ ए मतलब केवी है, बिकॉज दिस एफ ए इज इक्वल टू केवी प्लस एम जी. इज दिस क्लियर? एनी डाउट्स अबाउट दिस? समझे? तो यहां से मैं फाइंड आउट करूंगा व्हाट इज B माइनस के वी इज इक्वल टू एम जी, और मुझे एक्चुअली ये चाहिए. सो व्हाट आई से M इज इक्वल टू B माइनस के वी अपॉन जी. दिस इज इक्वेशन 2, और यहां से मुझे M मिलेगा, कैपिटल M डायरेक्ट मिल जाएगा. व्हाट इज M इज इक्वल टू B प्लस के वी अपॉन जी, और ये रिक्वायर्ड है व्हाट इज द मास रिमूव्ड. तो मास रिमूव्ड मुझे इससे मिलेगा. समझ में आ रहा है क्या सबको? So what will be the required mass? The removed mass or the mass removed is found out by M minus M. मतलब what is capital M? B plus KV upon G minus B minus KV upon G. और ये अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो buoyancy force gets cancelled. KV minus minus plus KV, that is 2 KV. This is 2 kV upon G. This is the mass that has to be removed. इतना मास उसको रिमूव करना पड़ेगा वहां से. Is that clear? 2 kV upon G. अगर हम K is the constant of proportionality that we have proposed, तो मैं KV के लिए सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. KV is equal to mg minus B. तो ये बन जाएगा 2 times mg minus B upon G. या तो फिर मैं इसको क्या कर सकता हूँ भाई, इस जी को अंदर भेज दो, तो विल बी 2 टाइम्स m माइनस बी अपॉन जी. तो इतना मास उसका रिमूव करना पड़ेगा. दैट इज द आंसर. नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर थियोरेटिकल क्वेश्चंस, मतलब इसमें वो वैल्यूज देंगे तो आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? और इसी को हम, ये तो डेरिवेशन टाइप ही हो गया ना, दिस इज अ काइंड ऑफ डेरिवेशन. तो कौन कहता है कि इसमें डेरिवेशन, दिस इज अ काइंड ऑफ डेरिवेशन, इसको हमने एनालाइज कर लिया. इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है, I'll switch over to the next question now. अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर. हाँ, क्वेश्चन नंबर 20. सो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वहां पे आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन दिमाग की जरूरत पड़ती है. समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन. दे से an empty plastic box of, और ये स्टार वाला प्रॉब्लम था जो मैंने अभी अभी सॉल्व किया. दैट वाज द स्टार प्रॉब्लम, नो डाउट अबाउट दिस. दिस वाज द स्टार प्रॉब्लम, और मैं स्टार वाली सॉल्व कर रहा हूँ बेसिकली.
Okay, an empty plastic box of mass m is found to accelerate up at the rate of g by 6 when placed deep inside water. पानी के अंदर उसको अगर रख दिया, एक बॉक्स है, एम्प्टी है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम, दिस इज एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉक्स, ठीक है। इट इज फाउंड टू एक्सेलरेट अप। अब देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन उन्होंने बोल दिया है, अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, करेक्ट ना। इट इज फाउंड टू एक्सेलरेट अपवर्ड्स, सो दे से दिस हैज गॉट द मोशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इसका जो मोशन आएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और इसका एक्सेलरेशन भी दिया उन्होंने, इज इक्वल टू जी बाई 6। When placed deep inside the water, how much sand should be put inside the box so that it may accelerate down at the rate g by 6? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फिलहाल वो ऊपर की दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब मुझे आप बताइए कि भाई इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे। तो पहला होगा इसके ऊपर, ये पानी के अंदर है तो इट इज अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट है ना, इट्स एन अपथ्रस्ट विच इज देयर। अच्छा, ये जो मास है इसका, इसका मास कितना है, m, m इज द मास, तो इसका सेल्फ वेट एक्ट करेगा नीचे mg, और ये अपथ्रस्ट है, दिस अपथ्रस्ट इज बाय वाटर, दिस अपथ्रस्ट इज बाय वाटर। इज दिस ओके, एनी डाउट्स अबाउट दैट? तो फिलहाल इसके ऊपर और भी कुछ है यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये दो ही फोर्सेस है, और इसमें वो मोशन हो रहा है, एंड दिस मोशन इज विद एक्सेलरेशन, मतलब देयर इज अ नेट फोर्स एक्टिंग इन विच डायरेक्शन, अपवर्ड। व्हाट इज द नेट अपवर्ड फोर्स? नेट अपवर्ड फोर्स जो होगा वो कितना आएगा, u माइनस एम जी, बराबर है क्या? दिस इज f एंड दैट f इज इक्वल टू ma, दैट f इज इक्वल टू ma ना, so I'll say it is equal to m into a, but a is already given to me, is g by 6, a is equal to g by 6, so what I'll write here, this is mg upon 6 and this is u minus mg. Any doubts about this? अब ये माइनस एम जी उधर जाके बन जाएगा, तो ये व्हाट विल बी, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू एम जी अपॉन 6 प्लस एम जी, एंड देयरफॉर द अपथ्रस्ट इज इक्वल टू 7 एम जी अपॉन 6, और 7 अपॉन 6 एम जी। I'll call this as equation 1. Now this was the first case, first part of it. अब उन्होंने क्या बोला कि इसके अंदर कुछ सैंड डाल दो। कितना सैंड डालना पड़ेगा, so that this will sink down with this much of acceleration? क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या करना पड़ेगा, अब मुझे सेम डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन अब के बार क्या होगा जी, आई जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन। सेकंड केस, आई जस्ट टेक दिस डाउन। नाउ व्हाट शैल आई डू हियर, बताइए। इसमें द मोशन इज डाउनवर्ड, ये मुझे चेंज करना पड़ेगा, द मोशन इज डाउनवर्ड, ऐसा जा रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं सैंड डाल दूं, सैंड मैंने इसके अंदर भर दिया, दे आर सेइंग हाउ मच सैंड, कितना सैंड है, आई डोंट नो यार। तो मैं बोलूंगा भाई इसका जो टोटल वेट आएगा सैंड के साथ, वो टोटल वेट उसका होगा कैपिटल एम। लेट मी से कैपिटल एम इज द, समझे क्या, या कैपिटल एम। तो अब आप मुझे बताइए कि इसका टोटल वेट कितना एक्ट करेगा नीचे, डाउनवर्ड, दिस इज कैपिटल एम, और इसका मोशन डाउनवर्ड है। समझ में आ गई बात, इज दैट क्लियर? अब इक्वेशन आप बताइए मुझे, व्हाट इज द इक्वेशन? दोनों फोर्सेस, देखो ऐसा करना है, आप जब लिखोगे दोनों में कौन सा वाला फोर्स जीत रहा है, डाउनवर्ड, कितने से जीत रहा है, कितने से जीत रहा है, यस, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, एक सेकेंड,
हाँ, ये जो स्मॉल एम है, हाँ यहाँ पे प्लीज नोट दैट दिस इज अ स्मॉल एम, ये स्मॉल एम है। अब इसके अंदर सैंड भर दिया है, सैंड भरने से उसका वजन बढ़ गया, ठीक है। तो अब मुझे इसका इक्वेशन अगर लिखना है तो दोनों में नीचे डाउनवर्ड वाला फोर्स जीत रहा है, तो इट विल बी एम जी माइनस यू, करेक्ट। एम जी माइनस यू इज इक्वल टू क्या आएगा, दिस इज द इफेक्टिव फोर्स एंड दैट एफ इज इक्वल टू एम में। नाउ व्हाट इज एम, कैपिटल एम, एंड एक्सेलरेशन इज जी बाई सिक्स, आई राइट दिस एज एम ए, अगले स्टेप में उसको मैं जी बाई सिक्स लिखूंगा। देयरफॉर व्हाट आई विल गेट देयर, एम जी माइनस यू इज इक्वल टू एम इंटू जी बाई सिक्स, तो ये इधर चला आएगा। देयरफॉर एम जी माइनस एम जी अपॉन सिक्स is equal to the upthrust, and therefore what is upthrust is equal to 5 by 6 mg, समझे, 5 by 6 mg। तो अब मुझे यहाँ पे अपथ्रस्ट ये भी है और अपथ्रस्ट ये भी है, और अपथ्रस्ट जो आएगा दोनों केस में, यहाँ से मुझे उसका सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा ना। उस फर्स्ट इक्वेशन से मुझे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल एम, 6u अपॉन 7g, कैन आई से सो, ओके। और यहाँ पर व्हाट विल बी द कैपिटल एम का वैल्यू, 6u अपॉन 5g, इजंट इट। तो व्हाट इज द बॉक्स का मास, बॉक्स का मास क्या है जी, स्मॉल एम, और बाद में जो हमने मास लिया है वो सैंड के साथ, सो व्हाट इज द मास ऑफ द सैंड एडेड, व्हाट इज द सैंड का मास, इट इज द टोटल मास माइनस बॉक्स का मास, करेक्ट है। तो व्हाट यू गेट देयर, इट विल बी 6u अपॉन 5g माइनस 6u अपॉन 7g, इज दैट क्लियर। इसमें से 6u अपॉन g कॉमन आएगा, 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 7, तो विल बी 7 माइनस 5 2, 2 अपॉन 35, सो 6u अपॉन 9 इंटू 2 अपॉन 35, तो कुल मिलाकर 12u अपॉन क्या आएगा ये 12 जो भी है, हाँ, लेकिन now I can write this answer in terms of the mass of the box, isn't it? So can I substitute for u here, u के लिए हम substitute कर सकते हैं, so this will become 6 upon 9, 6 upon 9 मतलब 3 2 जा and 3 3 जा, so ये क्या बन जाएगा 2 by 3 into 2 upon 35 into u के जगह पर मैं ये लिख लेता हूँ, what is u is equal to, actually u is equal to 7 upon 6 small mg, so I'll just substitute here 7 upon 6 into small mg। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 7 5 जा, 2 3 जा, सो कुल मिलकर क्या आएगा 2 अपॉन 45 mg, दिस इज द सैंड का मास, इज दैट क्लियर, दिस इज द एडेड मास, ओके। आप चाहिए तो इसमें से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि डायरेक्टली यहाँ पे दिस m माइनस m मुझे करना पड़ेगा, इज दैट ओके, 6u अपॉन 5g माइनस 6u अपॉन 7g, ये आएगा 7 माइनस 5 अपॉन 35, 6u हाँ क्या हो गया, लाउडर एंड क्लियर, न्यूमरेटर में क्या आएगा, वही मैं चेक कर रहा हूँ कुछ गड़बड़ हो गया क्या, लेट मी चेक दैट वंस अगेन। इधर ही चेक कर लेते हैं, रुक जाओ, दिस इज लाइक 3 2 जा 3 3 जा एंड u इज इक्वल टू 7 अपॉन 6 mg इंटू 2 अपॉन 35, क्या बचेगा रे, दिस इज 7 5 जा एंड 2 3 जा, तो क्या आ रहा है आंसर,
2/45 mg, वही आंसर आ रहा है. इज दैट क्लियर? फाइन. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन. अ सिंपल एटवुड मशीन. एटवुड मशीन मतलब यहाँ पर एक पुली लगाया हुआ है, एक तरफ एक मास है, दूसरी तरफ दूसरा मास है. A simple Atwood machine, two unequal masses m1 and m2 are connected by the string going over a clamped light smooth pulley. In a typical arrangement, m1 is equal to 300 gram. m1 is equal to 300 gram. पहले वाले arrangement में question number 22. m1 is equal to 300 gram and m2 is equal to 600 gram. The system is released from the rest. Find the distance traveled by the first block in the first 2 seconds. Find the tension in the string. Find the force exerted by the clamp on the pulley. ठीक है, तीन चीजें फाइंड आउट करनी है. Let us start solving one by one. So I will draw the free body diagram of the first mass, second mass and the pulley one by one. ठीक है, तो अच्छा पहले मोशन कहाँ से कहाँ जा रहा है? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द मोशन? मोशन इट इज 300 ग्राम और 600 ग्राम है, तो इट इज क्लियरली विजिबल दैट द मोशन इज गोइंग टू टेक प्लेस लाइक दिस. यहाँ से ये ऐसा जाएगा एंड दिस मास इज गोइंग टू गो डाउन. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ये मोशन का डायरेक्शन है. तो लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक. कैसे होगा बताइए? इफ दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक, अगर ये है फर्स्ट ब्लॉक, उसका फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा. पहले तो उसका सेल्फ वेट एक्ट करेगा नीचे. कितना है जी वो? m1g मतलब 300g. ठीक है ना? आई कॉल दिस एज m1g. बाद में लिखते हैं उसका वैल्यू जो भी आएगा, m1g. अच्छा, फिर और क्या फोर्स है इसके ऊपर एक्ट करने वाला? टेंशन. द टेंशन इन द स्ट्रिंग. तो आई शो हियर टेंशन इन द स्ट्रिंग इज T. ठीक है, और दोनों में कौन जीत रहा है यहाँ पे? The motion is in the upward direction with certain acceleration. Correct ना? Isn't it? तो टेंशन जीतेगा. कितने से जीत रहा है यहाँ पे? So I'll write it as T minus m1g. This is the resulting force. That is F is equal to ma. What is m? M is m1. इसका मास m1 है into acceleration a. Is this clear? ठीक है, क्या ये सबको समझ में आ गया? चलिए, दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक F2, सॉरी M2. M2 का FBD of M2, mass 2 का FBD and this is FBD of M1 का. चलिए बताइए क्या होगा यहाँ पर. इफ दिस इज M2, फर्स्ट इट इज M2g और फिर इसके ऊपर एक्ट हो रहा है टेंशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन. करेक्ट है? अच्छा, दोनों में कौन जीत रहा है? दिस इज गोइंग डाउन. कितने से जीत रहा है? कितने से जीत रहा है? दिस विल बी M2g minus T is equal to ma. M2a. दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय द सेम पुली, द सेम स्ट्रिंग. करेक्ट? ओके, तो ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2. तीसरा है इसके अंदर द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली. फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली. पुली का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो भाई ये पुली है. इस पुली को ये टेंशन नीचे की तरफ खींच रहा है और ये वाला टेंशन भी नीचे खींच रहा है. और पुली का जो यहाँ का जो है उसके ऊपर क्लैंप, पुली यहाँ पर क्लैंप किया गया है. सो जो क्लैंप है उसका रिएक्शन इस तरह से होगा. इज दैट क्लियर? और ये अपवर्ड रिएक्शन और ये दोनों टेंशन एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, इसलिए पुली वहां पर स्टेबल है. इज दैट क्लियर? तो मुझे किसी तरह से टी फाइंड आउट करना पड़ेगा. अब देखिए इसमें यहाँ पर हाउ मेनी इक्वेशंस आर देयर. तो यहाँ पर ये बन जाएगा R इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू T प्लस T, दैट इज 2T. तो
इन दो इक्वेशंस से मुझे क्या क्या पता है इसमें से, देखिए मुझे m1 पता है और मुझे m2 पता है. So how many unknowns are there in two equations? Two unknowns are there. What are the two unknowns? T and A, acceleration or tension. Can I solve these two simultaneous equations for these two unknowns? Yes, of course I can solve it. ठीक है, I will add these equation. ये equations को अगर add करेंगे तो क्या मिल जाएगा बताइए मुझे. यहाँ पर ये दूसरा वाला equation अगर मैं लिख दूं क्या बनेगा? This is m2g minus t is equal to m2a, and I will add these equation. तो plus t और minus t gets cancel. m2g minus m1g, उसमें से g कॉमन आएगा, so this will be m2 minus m1. समझे क्या? is equal to acceleration a कॉमन आएगा m1 plus m2. Any doubts about that? Is this okay? अब अगर हम masses को substitute कर दे वहाँ पे तो m1 and m2 600 और 300, so this becomes 600 minus 300 is 300g is equal to 600 plus 300 is equal to 900a. तो इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा and 3 3s are 9. So what is the acceleration with which it is going to go? It is g by 3. The acceleration will be g by 3. समझे? अब इससे मुझे टाइम फाइंड आउट कर सकता हूं मैं. उन्होंने पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन द फर्स्ट 2 सेकंड्स. फर्स्ट ब्लॉक पहले 2 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. तो यहाँ से जैसे ही इसको छोड़ दिया तो इट विल स्टार्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम हियर. तो उसका इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g by 3, isn't it? Acceleration is g minus g by 3 होगा ना एक्चुअली. नहीं, acceleration is g by 3. तो हम ये करेंगे कि उसको लिए I'll use the formula s is equal to ut plus half at square. इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम इज 2 सेकेंड्स और एक्सेलरेशन अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है वो है g by 3. करेक्ट. सो आई कैन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट. इट इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ a is g by 3 मतलब 10 by 3. I'll take it as 10 and time is 2 seconds. 2 का स्क्वायर, तो इसमें से एक 2 कैंसिल हो जाएगा. This is 10 to the 20 upon 3. So it will basically travel the distance of around 6.6 meter, 6.67 meter. ये उसका distance traveled होगा in the first 2 seconds. Any doubts about this first part of it? समझ में आ गया? दूसरा पार्ट उन्होंने क्या पूछा है वहां पे? The second thing they are asking is द फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग. तो यही दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो. भाई मैंने यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया है, आप किसी तरह से एक्सेलरेशन को सब्स्टिट्यूट कीजिएगा किसी भी एक इक्वेशन में, आपको टेंशन मिल जाएगा. चलिए इक्वेशन नंबर 2 से मुझे क्या मिलेगा, देखिए टेंशन को उधर भेज दीजिएगा और ये इधर आएगा. क्या मिल जाएगा? m2g, एक सेकेंड, क्या मिलेगा यहाँ पर? m2g माइनस m2a is equal to t. Therefore t is equal to, I'll take m2 common, it will be g minus a, but a is g by 3. समझे क्या? So this will become, it is m2 into 2g by 3. Correct? So it will be 2 by 3. m2 is 300 ग्राम दिया है ना मुझे, तो उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसके अंदर. t is equal to 300 ग्राम है मतलब 0.3 kg है, डिवाइड बाय 1000 से डिवाइड करिए. तो m2 जो है वो 300 ग्राम दिया है आपको, तो उसको मुझे kg में कन्वर्ट करना है, तो 300 अपॉन 1000 kg एंड दैट इज इक्वल टू 0.3 kg. तो दिस इज 0.3 एंड g इज इक्वल टू 10. तो ये कितना आएगा देखिए, 10 और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा. सो t इज इक्वल टू 2 न्यूटन. टेंशन कितना होगा जी? 2 न्यूटन का टेंशन होगा. 2 न्यूटन होगा, कितना होगा ये? m2 इज, एक मिनट, m2 इज इक्वल टू 600 है. m2 600 ग्राम है, मैंने 300 लिया, इट इज 600 एक्चुअली, ये 600 है. m2 इज 600 ग्राम, 600 ग्राम 0.6 kg. तो अगर इसको 0.6 लिखूंगा तो ये कितना आएगा देखिए, दिस विल बिकम 2 by 3 into 6, 3 2 the 6, so this will become 4 Newton. So the tension is 4 Newton, and then likely what will be the reaction at this? It is equal to 4 plus 4, 8 Newton. So these are all the answers here. Is this clear to you? Any doubts about that? Okay, we stop here today. हम फिजिक्स के लिए रुक जाते हैं, ठीक है.
अच्छा धनश्री